अपनी अपनी बुक्स को मेरे साथ खोल लीजिए। आइए हम बुक रीडिंग करते हैं। Of the boys who do not reach their natural academic boundary during the course of their college career, but who fail to get through, there are two main classes: those who try and those who do not try. Many boys attempt seriously to make good, but really have the native ability to do so, but find it almost impossible to sit at a desk and concentrate on the tasks assigned. There is the boy who sits down to study, opens his book, but before starting on his work, says to himself, I think that I had better sharpen my pencil. It needs it badly, and when he has sharpened it, he observes that all his pencils need sharpening, and so on, until his time is gone and nothing has been done. Such nervous habits are not easy to uproot, and so far as I can see, cannot be eradicated by anyone but the boy himself. Others can see the difficulty, but the boy must take himself by the collar and make himself cultivate a poise and calm that smothers the fidgets. Until he does this, he does not really try, although he thinks he is trying, and often spends more time in the presence of an open book than many of boy of equal ability who does good work. A common cause of failure is a mistaken ambition for the boy on the part of his parents. More often than I should wish, I find a boy who is not showing any interest in his work and who is not trying to do it with any distinction, because he is following a direction mapped out by his parents that runs counter to all of his interests and abilities. I have made a number of very warm enemies among the parents of college students by telling them that I am certain that the good Lord never intended their son to be a physician or a dentist or engineer. It may be that the boy has ability enough to be any one of these things, but the long and short of it is, he does not want to be. He wants to be a theatrical manager, or a businessman, or a book illustrator. It may be unreasonable for the boy to turn his back on a fine opening in the dental profession in the favor of business. By reason cannot control all of these matters, as well argued with a person that he ought to like onions when he detests them. As a general thing, the boy wins out in such controversies, and he should. Also, be it said, the parent whom I have offended usually comes around after a term of years and tells me that his son was right and that he is thankful to me for taking the part of the boy in the argument. If such a boy fails, it is because he cannot bring himself to try to do the work that is distasteful to him and that he feels is leading him in the wrong direction. If the college is alive to its work of advice, such cases are caught before the failure is complete. राइटर अपने
फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की बेस पे हमें क्या बताते हैं कि दो तरह के बॉयज़ होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं। एक तो वो जो सिरे से कोशिश ही नहीं करते, जिन्होंने पढ़ना ही नहीं है। एक वो जो कोशिश करते हैं लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी जो है वो कामयाब नहीं हो पाते। अब पहली जो रीज़न राइटर हमारे साथ शेयर करता है वो ये है कि उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो लो हो जाता है जब वो बुक को ओपन करते हैं, या उनका जो फोकस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो ही किताब खोलेंगे उन्हें लगेगा कि मुझे तो बहुत सारे और काम पहले कर लेने चाहिए, उसके बाद मैं दोबारा आके पढ़ूँगा। बुक खोलता है और उसको याद आता है कि उसकी तो पेंसिल का जो निब है वो टूटी हुई है। उठता है और जाके अपनी पेंसिल को शार्प करता है। फिर उसको याद आता है कि मुझे तो अपनी सारी ही पेंसिल्स शार्प कर लेनी चाहिए, और इस तरह से वक्त गुज़रता चला जाता है और वक्त ज़ाया हो जाता है, और जो वक्त है वो वापस नहीं आता। राइटर कहता है कि कोई भी शख्स ऐसे स्टूडेंट को ठीक नहीं कर सकता सवाए इसके कि वो अपना डॉक्टर ख़ुद बने और अपने आप को खुद ठीक करे, अपने आप को कॉलर से पकड़े और बिठाए और कहे कि तुमने पढ़ना है और अब इधर उधर नहीं उठ के जाना और अपना ध्यान इधर उधर नहीं करना, तो ही वो जो है वो बेहतर कर सकता है। और इसी की एबिलिटी का एक और बच्चा जिसका जो फोकस है वो बहुत अच्छा है, वो इस बच्चे से जिसका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो लो हो जाता है, उससे कई गुना बेहतर परफॉर्म करता है और कर सकता है। सेकंड प्रॉब्लम जो राइटर हमारे साथ शेयर करता है वो ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रॉन्ग डिसीजंस करते हैं। उन्हें लगता है कि वो उनके लिए बेहतर चूज़ कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो सोचें कि उनके बच्चे के अंदर नेटिव एबिलिटी क्या है। हो सकता है एक बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा हो तो उसको ड्राइंग की तरफ, फाइन आर्ट्स की तरफ जाना चाहिए। एक बच्चा जो है वो उसका जो माइंड है वो टेक्निकल है तो उसको टेक्निकल फील्ड्स की तरफ जाना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स कंपेल करते हैं कि नहीं जी मेरा बच्चा जो है वो बिजनेसमैन ही बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, तो वो इन चीज़ों में बच्चा जो है वो बिल्कुल पिसकर रह जाता है। अब जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पर वो अपनी एबिलिटीज़ को शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि लर्निंग जो है वो ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, ना करवाई जा सकती जब तक बच्चे का अपना इंटरेस्ट उसमें नहीं है। राइटर कहता है कि जी अगर किसी को प्याज जो है वो नापसंद है और उसको कहा जाए कि तुम खाओ, तो वो कैसे खा सकता है? नहीं खा सकता ना। बहुत सारे पेरेंट्स के साथ राइटर की एज अ टीचर, एज अ एजुकेटर, एज अ डीन ऑफ कॉलेज बहुत दफ़ा जो है वो बहस हुई, बहुत दफ़ा झगड़ा हुआ, बहुत सारे लोग उसके दुश्मन बन गए, क्योंकि जब बच्चा उसके पास लाया जाता था तो वो बच्चे को पूछता कि भाई आपको क्या बनना है, आपको क्या पढ़ना है। तो पेरेंट्स अपनी जो है वो विल और अपनी चॉइस को इम्पोज करना चाह रहे हैं। बच्चा कहता है जी मुझे तो ये बनना है। तो इस मौके पर राइटर बच्चे का साथ देता, पेरेंट्स का नहीं, और ऐसे लोगों को वो अपना दुश्मन बना लेता और कहता नहीं जी अब का जो बच्चा कह रहा है उसमें उसको एडमिशन दिया जाएगा, जो आप कह रहे हैं उसमें उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है, वो कहता है कि वो याद करता है कि जब एक साल या काफ़ी साल गुजर जाते तो बहुत सारे लोग ऐसा हुआ कि उसके पास पलट कर आए और कहने लगे कि आप ठीक थे, आपने उस वक्त हमारे लड़के का साथ दिया, हमारे बच्चे का साथ दिया, तो आपका फ़ैसला बिल्कुल ठीक था, और आज उस फैसले की वजह से वो बच्चा कहीं ना कहीं पहुंचा हुआ है। इसी तरह से राइटर एक बड़ा अच्छा जो है वो सजेशन देता है कि अगर हमारे जो तालीमी इदारे हैं उनमें ऐसा भी माहौल होना चाहिए, एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो बच्चों को हेल्प आउट करे कि उन्होंने क्या चूज़ करना है और क्या नहीं चूज़ करना। तो इससे भी जो फेलियर की रेशो है उसको बहुत ज़्यादा कम किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।